حوالے میں خداوند یسوع مسیح ان لوگوں سے مخاطب ہے کہ جو اس کے پیچھے چلتے ہیں. بہت سارے اس زمانہ میں ایسے لوگ تھے کہ جو اس غرض سے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے آتے تھے کہ جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے. جیسے کوئی ڈاکٹر سے شفا کی طلب کرتا ہے, خداوند یسوع مسیح ان کی مدد ضرور کرتا تھا. خداوند یسوع مسیح انہیں مایوس نہیں کرتا تھا, بلکہ ان کی خواہش کے مطابق کام کرتا تھا اور ان کو ہر طرح کی بیماری سے, ہر طرح کی شیطانی نقوت سے, ہر طرح کی مشکل سے آزاد کرتا تھا. مگر آج کا جو حوالہ ہے جو تلاوت کیا گیا ہے کہ یسوع نے کہا ہے کہ جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے وہ اپنی خودی سے انکار کرے. اس حوالے میں ہمیں خداوند یسوع مسیح اس بات کے لیے سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جو میرے پیچھے پیچھے اس نجات بخش منصوبے میں, اس نجات بخش مکانوں میں جانا چاہتا ہے, وہ اپنی خودی کا انکار کرے. یعنی کہ زمین پر رہتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح کے جو لوگ پیچھے آتے تھے, یسوع ان کو بچانا چاہتا تھا. ان دنوں میں ہم خداوند یسوع مسیح کی اذیت کے بارے میں سیکھتے ہیں, خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کے بابت سیکھتے ہیں, اور ہم مسیحی ہونے کے ناطے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. ان دنوں میں ہم نہ تو اپنے گھروں میں کوئی خوشی رکھتے ہیں, نہ کوئی بیاہ شادی کا اہتمام کرتے ہیں, اور یہ کس بات کی علامت ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے منجی خداوند نے دکھ اٹھائے تھے ان دنوں میں. تو اس کے دکھ اٹھانے کا مقصد کیا تھا کہ انسان نجات پائے, انسان اپنے آپ کو بچائے اس آگ سے جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی گئی ہے, اس آگ میں انسان نہ جائے. اور بہت سارے شاگرد, بہت سارے لوگ اس کے پیچھے آتے تھے, مگر اپنا جب ان کا کام ہو جاتا تھا اسے چھوڑ جاتے تھے. اور جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ سلسلہ چلتا ہے تو اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا, اور لکھا ہے, ہم نے پڑھا ہے کہ اور اس نے سب سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے. یعنی کہ زمین پر رہتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے اس بات پر انسانوں کی توجہ دلائی کہ جو خداوند کی بادشاہی میں ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے میں ہمارے آگے رکاوٹ ہے. خودی کا مطلب کیا ہے؟ خودی کا مطلب ہے کہ غرور, تکبر. جو شخص اپنے غرور کو نہیں چھوڑتا, جو شخص اپنے تکبر کو نہیں چھوڑتا, وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. مسیح میں میرے عزیزو, کلام مقدس کا آپ موازنہ کریں, کلام مقدس میں سے دیکھیں کہ بہت سارے ایسے حوالہ جات, ایسی تمثیلیں ہمیں ملیں گی کہ جس زندگی میں تکبر آیا ہے, جس زندگی میں غرور آیا ہے, خدا نے اسے فنا کر دیا. خدا نے اسے طرح طرح کی مصیبتوں میں, طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کر دیا ہے. مسیح میں میرے عزیزو, کلام مقدس میں دیکھیں, آج کے اگر دنیاوی توجہ پر ہی جائیں, کیونکہ آج کل لوگوں کی جو توجہ بنی ہوئی ہے وہ صرف شفا پر اٹکی ہوئی ہے. اگر آپ شفا بھی پانا چاہتے ہیں, اگر چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو شفا دے, تو لازم ہے کہ شفا پانے کے لیے بھی ہمیں اپنے خودی کا انکار کرنے کی ضرورت ہے. کلام مقدس میں دیکھیں, ہم نعمان کوڑی کا واقعہ جانتے ہیں کہ جب اس کی زندگی میں تکبر تھا, اس کے پاس بادشاہ کا رکا تھا, بادشاہ کا ہاتھ تھا, تو اس نے سوچا کہ میرے پاس بہت ساری پاور ہے, اور یہ پاور اس کا تکبر بن گئی, اور اس کا عہدہ بھی, وہ ایک سپہ سالار تھا, اور اس کا عہدہ بھی اس کے تکبر کا باعث بنا. تو اسی میں میرے عزیزو, اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ الیشا نبی, جب میں وہاں اس ملک میں جاؤں گا تو الیشا نبی میرے استقبال کو آئے گا, مجھے ویلکم کرے گا. تو اسی میں میرے عزیزو, یہ اس کے تکبر کی باتیں تھیں, یہ اس کے اندر کا غرور بول رہا تھا. تو اسی میں میرے عزیزو, جب اس کی زندگی میں غرور تھا تو وہ شفا پائے بغیر ہی وہاں سے واپس چلا آتا ہے. اور جب الیشا نبی نے اسے کہا کہ اگر تو اچھا ہونا چاہتا ہے تو جا دریائے یردن میں جا کر 7 غوطے لگا لے. تو اس نے کہا کہ یہ دریا تو میرے شہر سے بھی, میرے ملک سے بھی گزرتا ہے, اگر مجھے اس میں نہا کر ہی شفا ملنی تھی تو میں وہاں پر ہی نہا لیتا. تو اپنے تکبر کو ساتھ لے کر, اپنے غرور کو ساتھ لے کر وہ واپس آ گیا. اس کے ملازموں نے جو اس کے ساتھ تھے, جو اتنا سفر کر کے آئے تھے, تو اسی میں میرے عزیزو, خدا نے ان میں سے ہو کر کام کیا, اور اسے کہا, وہ اسے کہنے لگے کہ اگر یہ نبی تجھے کوئی بڑا کام کرنے کو کہتا تو تو کرتا, لازم ہے کہ تو
इस दरिया में 7 गोते लगा ले। और उसी में मेरे अजीजों जब उसने गोते लगाए तो उसका सारा तकब्बर जो है वो उसमें डूब गया और खुदा ने उसे शिफा बख्शी। और जब वो वापस आया, जब उसकी ज़िंदगी में से तकब्बर निकल गया, जब उसकी ज़िंदगी में से गुरूर निकल गया और वो अच्छा हो गया, अपनी बीमारी से शिफा पा गया, तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब वो वापस आया और उसे वो चीज़ें जो वो अपने साथ लेकर आया था कि मैं शिफा पाऊंगा और उस नबी को, उस खुदा के बंदा को, उस मर्द खुदा को मैं ये इनाम में दूंगा। तो वो जब उसे वो चीज़ें देने वापस आया तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ईशा अपने घर के दरवाजे पर, अपनी कोठरी के दरवाजे पर खड़ा था कि जो वो दिल में ठान कर आया था कि वो मेरे इस्तकबाल को, मुझे वेलकम करने को निकले, तो जब उसका गुरूर, उसका तकब्बर धुल गया तो उसकी ख्वाहिश भी पूरी होगी, वो अच्छा भी हो गया और उसकी ख्वाहिश भी पूरी होगी। तो मसीह में मेरे अजीजों, आज का हवाला हमें इस बात की तालीम देता है कि अगर हम खुदा से बरकत पाना चाहते हैं और अपने आप को मसीही कहते हैं, मसीह के पैरोकार कहते हैं, तो यीशु कहता है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहले अपनी खुदी का इनकार करे, अपने तकब्बर को छोड़े, अपने अंदर आजिज़ी और हलीमी को पैदा करे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने हमें यह भी दर्श दिया है कि वैसा कलाम मुक़द्दस में लिखा है, कलाम हमें इस बात के लिए भी तालीम देता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। हमें यीशु के मिजाज को अपनाने की ज़रूरत है। हम यीशु मसीह की ज़ात को देखें, यीशु मसीह की शख्सियत को देखें कि हमारा मसीही ईमान है कि वो उसके रूप में खुदा खुद ज़मीन पर आया और इंसान होते हुए, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, यीशु ने साफ फरमाया है कि ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। ज़मीन और आसमान का इख्तियार होते हुए भी मैंने नहीं इस बात को पढ़ा कि ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार होते हुए भी, आसमान का मालिक होते हुए भी और ज़मीन का मालिक होते हुए भी उसकी ज़िंदगी में कहीं भी तकब्बर आया, कहीं भी इंसान होते हुए। हम कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है। उसने कामिल खुदा होने का भी सबूत दिया और कामिल इंसान होने का भी सबूत दिया। कामिल इंसान होते हुए मैंने नहीं कहीं भी पढ़ा कि मसीह की ज़ात अक़दस में कहीं भी तकब्बर या गुरूर आया है। उसने हमेशा हलीमी को तरजीह दी है, हमेशा आजिज़ी को तरजीह दी है कि जो अपने आप को आजिज़ बनाएगा, जो अपने आप को हलीम बनाएगा, खुदा की बरकत उसे मिलेगी, हर तरह की बरकत उसके पास होगी। तो इसीलिए जो खुदा हमारे साथ इतना प्यार करता है कि उसने अपने इकलौते बेटे को ज़मीन पर भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और इस ज़िंदगी को पाने के लिए वो आज हमें सबक देता है कि मेरे पीछे पीछे अचानक आप उसकी बातचीत में दाखिल हो सकते हैं और मेरे पीछे जो चलता है वो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब हर रोज़ उठाए। और आज हम क्या करते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि हम निजात पाएं और सिर्फ इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ हों। यहाँ पर यीशु में सलीब उठाने का मतलब ये नहीं कि हम जिस तरह यीशु ने सलीब उठाई इस तरह, बल्कि यहाँ पर जो लफ्ज़ सलीब इस्तेमाल किया गया है वो हमारे दुखों की बाबत है कि अगर हमारे मुनज्जी खुदावंद ने दुख उठाकर एक अच्छा मुकाम हासिल किया, तो जब तक हमें वो सिखाना चाहता है कि जब तक हम भी दुख ना सहेंगे, मुसीबतों का सामना ना करेंगे, खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। तो इसी में मेरे चीज़ों, हम यहाँ पर जो भी काम करते हैं, जो भी रास्तबाजी के काम हम करते हैं, रोज़े रखते हैं, सखावत करते हैं, खरायत करते हैं और नेकी के काम करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, यानी कि हर वो काम जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है करते हैं, उनके पीछे एक ही मकसद है कि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ और खुदा भी यही चाहता है। और इसी में मेरे अज़ीज़ों, हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए हमें अपनी खुदी का इनकार करना है। मैं आपके सामने एक और मिसाल रखना चाहूँगा, क्योंकि हम तमसीलों के वसीला से कलाम मुक़द्दस की तमसीलों के वसीला से हम सीखते हैं कि हमारे ईमान की मजबूती होती है और हम तमसीलों को जब सुनते हैं तो ईमान में मजबूत होकर खुदा के कलाम का यकीन करते हैं। कलाम मुक़द्दस में अफ़ज़िया बादशाह का जिक्र है। अज़रिया काहिन के दौर की बात है कि वहाँ पर लिखा है कि उस बादशाह को जब खुदा ने 3-4 कौमों पर फतह बख्शी तो उसे
उसका कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह समझने लगा और हैकल में जाकर वो काम करने लगा और इस बात को महसूस करने लगा कि मैं अब बहुत बड़ा बादशाह हूँ और मैं सब काम कर सकता हूँ। और उसकी ये फतवात, उसका ये ओहदा, उसका तकब्बर बन गया। और कलाम मुक़द्दस में लिखा कि जब वो हैकल में गया तो उसने सोचा कि बखूर जलाने का काम भी अब मैं कर सकता हूँ। इतना कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसका दिल फूल गया और उसने ये समझा कि जो काम काहिन करते हैं ये मैं भी कर सकता हूँ। और जब वो करने लगा, बखूरदान अपने हाथ में पकड़कर जब वो कुर्बान का वज़बा पर चढ़ने लगा तो उसे अज़रिया कायम ने उसे मना किया कि ऐ बादशाह, ये तेरा काम नहीं, ये कहनों का काम है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो उनके साथ लड़ने लगा, उनके साथ वो बहस करने लगा। और कलाम मुक़द्दस में लिखा कि जब वो बखूरदान पकड़कर वज़बा पर चढ़ा तो उसके तकब्बर की से क्या सज़ा मिली कि उसी वक़्त उसकी पेशानी से कोढ़ फूटना शुरू हो गया। उसी वक्त उसे कोढ़ की बीमारी लागे। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो अपने मरने तक कोढ़ी रहा, सारी जिंदगी उसे शिफा नहीं मिली। आज हम भी इन चीज़ों में किसी को अपने बड़े होने का तकब्बर है, किसी को अपने ओहदे का तकब्बर है, किसी को अपने पैसे का या किसी न किसी तरह का हर इंसान में तकब्बर पाया जाता है। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, इस तकब्बर की वजह से आज हम बीमारियों में मुब्तला हैं, आज हम परेशानियों में मुब्तला हैं। और जो लोग खुदा के कलाम के शिनवा होते हैं, जो खुदा के कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, खुदा उन्हें शिफा भी देता है और खुदा उन्हें हमेशा की ज़िंदगी का भी वारिस बनाएगा। क्योंकि अगर हम आज के कलाम को सुनकर इस पर अमल करेंगे, अपनी खुदी से इनकार करेंगे और ऐसी ज़िंदगी बसर करेंगे कि जो खुदा हमें देना चाहते हैं, जो जिस तरह खुदा चाहता है, ऐसी ज़िंदगी बसर करेंगे तो लाजम है कि खुदा अपने वादों में सच्चा है। और यीशु ने अगर कहा है कि जो शख्स अपनी खुदी से इनकार करेगा वो खुदा की बादशाही में दाखिल होगा। तो इसीलिए मेरे अज़ीज़ों, हमें इस बात की ज़रूरत है कि आज हम खुदा के बेटे और बेटियां होने की वजह से के नाते हम अपनी खुदी से इनकार करें। कलाम मुक़द्दस में मिसाल की किताब उसका पहला बाब पढ़ें तो वहाँ पर 6 चीज़ों के बारे में सुलेमान कहता है कि खुदा को नफरत है। और सबसे पहली बात जो वो बयान करता है वो यही है कि जिस चीज़ से खुदा को नफरत है वो ऊंची आँख है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा का बंदा सुलेमान फरमाता है कि 6 चीज़ें हैं जिनसे खुदा को नफरत है, बल्कि 7 है जिनसे उसे कराहत है। और पहली बात कहता है कि ऊंची आँख से। और इंसान की आँख कब ऊंची होती है कि जब उस पर तकब्बुर आ जाता है। जिस तरह मैंने इस अफरिया बादशाह की बात आपके सामने की, इसी में मेरे अज़ीज़ों, आज हमें जो भी बरकत आपके पास हैं वो आपका तकब्बुर न बने, बल्कि आजिज़ और हलीम इंसान खुदा को पसंद है। हिजकिय्याह बादशाह की तरफ देखिए कि जब वो खुदा के बंदा यशायाह ने उसे बताया, जब यशायाह ने उसे बताया कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में वो बीमार पड़ गया, तो खुदा ने यशायाह को कलाम दिया और कहा कि जा हिजकिय्याह से कह कि ये जो बीमारी तुझ पर आन पड़ी है इससे तू शिफा नहीं पाएगा, बल्कि ये बीमारी तुझे मार देगी, तू अपने घर का बंदोबस्त कर ले। तो इसी में मेरे दोस्तों, जब उसने ये कलाम सुना तो वो शिनवा हुआ, उसने सुना और अपनी ज़िंदगी में लिया। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और उस दीवार का रुख किस तरफ था? हैकल की तरफ था, क्योंकि वो जानता था कि खुदा का वादा है सुलेमान के साथ कि जो कोई शख्स इस तरफ मुंह करके दुआ करेगा मैं उसकी दुआ को सुनूंगा। तो उसी में मेरे अज़ीज़ों, उसने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और ज़ार ज़ार रोने लगा। रो कर उसने दुआ की, और रोना भी, सजदा रेज़ होना भी एक आजिज़ी को ज़ाहिर करता है, एक यानी कि हलीमी को ज़ाहिर करता है। और जब उसने आजिज़ और हलीम होकर आंसुओं के साथ खुदा के आगे दुआ की तो अभी यशायाह नबी शहर से बाहर भी नहीं गया था। तो उसने अपने, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, खुदा ने हर तरह की बरकत से बड़ी बीमारी से निकालने की कोशिश करते हैं। और जब वो ज़्यादा रोया और उसने दुआ की तो यशायाह को वापस खुदा ने भेजा और कहा कि जा मेरे पेशवा हिजकिय्याह से कह कि मैं 3 दिन में
इस बीमारी से तुझे शिफा बख्शूंगा। कितने दिनों में? 3 दिन में इस बीमारी से तुझे शिफा मिलेगी और तू खुदा के घर में जाएगा और मैं तेरी उम्र के 15 वर्ष और बढ़ा देता हूँ। तुमसे भी मेरे अजीजों, ये शिफा, जो वो बीमारी जो उसे मारने वाली थी, इतनी उस पर हैवी हो चुकी थी और पता नहीं कितनी देर से वो इस बीमारी में मुब्तला था। और जब उसने अपने आप को सरमंदा किया, कलाम को सुना और इस बात का उसने इजहार किया और उसने अपनी नेकी के काम उसके खुदा के आगे रखे। या खुदावंद, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर पूरे दिल से चलता आ रहा हूँ। तो जब खुदा ने उसके रास्तबाजी के कामों पर नजर की और उसकी जिंदगी को बढ़ा दिया उसने, और वो बीमारी जो 3 दिन में उसे मार देने वाली थी, और जो उसे मार देने वाली थी, 3 दिन में उससे शिफा मिली। और ये कुदरत किसके पास है? खुदा के पास है। वो बीमारी के आखिर से इंसान को वापस ले आने की कुदरत रखता है, जिंदगी देने की कुदरत रखता है। तो इसी में मेरे अजीजों, आज का कलाम इन रोज़ों के अय्याम में हर शख्स का दिल जो है वो खुदा की तरफ माइल होता है, नरम होता है। और ये रोज़ों के अय्याम में नहीं होना चाहिए, बल्कि यीशु सारी ज़िंदगी की बात करता है कि जितनी देर आपकी ज़िंदगी है, जितनी देर आपके पास है इस ज़मीन पर आप जिंदा हैं, उतनी देर तुम्हें जो मेरी पैरवी करते हैं वो उतनी देर ही खुदी से इनकार करें। अपने आप को आजिज़ और हलीम बनाएं, तब ही हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। खुदा आज के कलाम के वसीला से में बहुत ज़्यादा बरकत दी। आमीन।